Today we'll discuss the unit number 18, organization committed to protecting and preserving nature. In this, first is Center for Animal and Social Justice. It is one of the most powerful voices for animals. The center is committed towards understanding and overcoming any obstacle that hinder animal welfare. The organization is involved in research for developing the best practice and expertise for improving the social and political status of animal. It regularly publishes reports and articles to promote animal welfare as a core political policy in the UK and other countries among intergovernmental agencies. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है. टाइम टू टाइम इट पब्लिशेस वेरियस आर्टिकल्स सो दैट जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो सके और उनके जो वेलफेयर है, उनकी भलाई के लिए जो एनिमल्स हैं उनके लिए उनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए काम हो सके. नेक्स्ट इज फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट. It is a 501 national non-profit organization. The objective of FARM is to ban the use of animal for food by educating the public through grassroots activism. The organization believes in the inherent self-worth of animal, environmental protection and better public health. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्म, ये काम करती है, ये लोगों को जागरूक करती है, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं उनको हम एज ए फूड कंज्यूम नहीं कर सकते. Now, animal naturalist, it is actively dedicated towards reducing the suffering of animal in countries like Mexico, Spain, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, and Chile. The organization support animal right to life, liberty, and not to be tortured and treated as property. It has advocated against use of animals in the fashion and entertainment industry. It has also protested against the skin industry in Spain. Its method includes city-by-city campaign, protest, gathering signatures, and lobbying politicians. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जगह जगह कैंपेन चलाते अपने, प्रोटेस्ट करते हैं एंड दे मेक पीपल अवेयर कि जो एनिमल्स हैं उनके, स्पेशली ये जो एंटरटेनमेंट या फैशन इंडस्ट्री है, यानी कि उनके कोई भी ऐसा क्लोथिंग वगैरह नहीं बननी चाहिए. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके स्किन का यूज किया जाता है, सो दे आर अगेंस्ट इट. नेक्स्ट इज पेटा, PETA, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिलीव करती है वी शुड ट्रीट एनिमल्स एथिकली. एथिकल का मतलब होता है कि किसी की परेशानी को समझना कि जो एनिमल्स हैं दे आल्सो हैव राइट, और ये अगेंस्ट है जो कि रोडेंट, जो कीड़े मकोड़े एनिमल्स को मारा जाता है पेस्ट कहकर, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट भी है. इट वर्क्स टू प्रिवेंट क्रुएलिटी टुवर्ड्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल. और जो एनिमल है जिनको पालतू बनाया जाता है उनके अगेंस्ट जो होने वाले क्रुएलिटीज हैं ये उनके अगेंस्ट भी है. और इसके लगभग 6.5 मिलियन मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं. Next is Worldwide Fund for Nature. It is world's foremost conservation organization with presence in more than 1,000 countries. It has over 1 million members in United States and nearly 5 million globally. WWF's method includes a global reach program based on science, action from the grassroots to the top level, and delivery of innovative solutions that address the need of nature and humans alike.
तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लगभग 1 मिलियन मेंबर्स तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में है, और अक्रॉस द ग्लोब इट हैज 5 मिलियन मेंबर्स एंड सपोर्टर्स. सो ये जो हैं, again they believe in conserving the conservation of animals as well as environment. World Animal Protection. The organization is committed to protecting the world's animal. It aims to create identity and reach out across geographical boundary to help the animals suffering. और ये animals को help provide करते हैं जिस तरह की help animals को चाहिए कि उनके against कोई भी cruelty ना हो. Next is the amazing world of animals. Here a crossword is given and there are certain clues. So the first clue is the animal, it is a member of Baidae family and has eye that have rectangular pupil. That is goat. Baidae family होता है जो कि buffalo या cow की family होता है, तो somehow ये उसकी family को belong करता है. और उसकी जो pupils होती हैं यानी कि आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो होती हैं rectangular in shape. This royal animal belongs to cat family. It is solitary hunter and mostly a nocturnal creature. This is tiger, जो कि एक solitary hunter यानी कि अकेले शिकार करता है. Nocturnal creature है, रात को बाहर आता है. And it belongs to cat family. और ये cat की family को belong करता है. दिस बिग एनिमल, और ये कैट फैमिली का मतलब है ये जो हमारी कैट है, जो टाइगर है, लायन है या कैट है, दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. दिस big animal is an excellent swimmer and loves to splash about in water and mud. This is elephant. Elephant को पानी में जाना, पानी में खेलना बहुत पसंद होता है. Besides this, जो animal होता है वो largest living animal है on land. This animal belongs to lizard family. To avoid predator, it camouflages itself by changing its skin color and merging with the surrounding. अब ये जो एनिमल है ये लिजार्ड फैमिली को बिलोंग करता है और ये कैमोफ्लेज करता है. कैमोफ्लेज का मतलब है अपना जो कलर है बॉडी का वो बाकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करना. अगर ये ट्री बार्क पे है तो अपना कलर ये उस तरह से चेंज कर लेगा, लीव्स पर है तो उस तरह से चेंज कर लेगा. दिस इज नोन एज कैमोफ्लेज. तो ये लिजार्ड फैमिली का एक मेंबर है. दिस इज चेमेलियन जो कि क्या करता है, कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज मींस ये अपनी बॉडी का कलर अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है. नेक्स्ट, दिस फ्लाइंग एनिमल is a mammal. It has small but extremely sharp teeth which can pierce right through the skin of prey. ये here we are talking about bat, जो कि एक ऐसा एनिमल है जिसके टीथ इतने शार्प होते हैं कि वो अपने शिकार के का जो फ्लैश है उसको टीयर कर सकता है. This beautiful cold region animal generally search for its food in water. It cannot swim backward. Here we are talking about penguin. एक ऐसा एनिमल है जो कि कोल्ड रीजन में पाया जाता है और ये पीछे की तरफ स्विमिंग नहीं कर सकता. This animal belongs to class of reptile. Its tongue help it in smelling out its prey or food. The tongue also helps this animal to avoid its enemies. ये एक ऐसा एनिमल है स्नेक जो कि रेप्टाइल्स को बिलोंग करता है. यानी रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, जो नीचे जमीन along the floor, along the soil जो मूव करते हैं.
और इसकी जो टंग होती है ये बार बार बाहर निकालता है सो दैट ये अपने शिकार को पहचान सके कि कहाँ है। बिकॉज लाइक लेजर्ड, जो छिपकली होती है वो भी अपनी टंग बाहर निकालती है अंदर बाहर। वो इसलिए निकालती है कि वो जो एयर है उसको टेस्ट करके बता देती है कि खाना कहाँ है। 9. This animal is a marsupial and cannot walk backward. एक ऐसा एनिमल जो कि मार्सूपियल है, इट्स कैंगरू, जो कि उल्टा नहीं चल सकता। मार्सूपियल्स वो होते हैं जिनकी जो बॉडी है उसमें आगे एक पाउच होता है एंड द बेबीज ग्रोज इन दिस पाउच। जो बच्चा है उनका जो बच्चा होता है वो इस उसमें जो पाउच है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है। Now on the another page, we have some true false. The milk of the hippopotamus is yellow in color. Hippopotamus का जो milk होता है वो yellow color का होता है. It's false. It's of pink color. A cat has 32 muscles in each of its ear. That's true. Cat की जो एक single कान है उसमें लगभग 32 muscles होती हैं. The cheetah is the only big cat that cannot roar. True. Cheetah एक ऐसा एनिमल है जो कि अगेन कैट फैमिली को बिलोंग करता है लेकिन ये दहाड़ नहीं सकता. It cannot roar. The horse is an omnivorous animal. False. The giraffe has 4 stomachs. It's true. A rabbit has a lifespan of about 10 years. True. The egg of a shark are smaller in the world. False. A gorilla has a lifespan of 40 to 50 years. It's true. Now here certain clues are given and we have to write what is the right answer या फिर किस animal के बारे में यहाँ बात की जा रही है. I have a hump on my back and can drink up to 30 gallons of water in less than 15 minutes. कि मैं लगभग एक बार में 30 गैलन पानी 100 लीटर पानी ये पी जाता है एक बार में. और इसके बॉडी पे क्या होता है, पीछे एक हम्प होता है. दिस इज कैमल. कैमल की बॉडी पे हम्प होता है ये. दिस इज अ हम्प बट दिस इज नॉट यूज्ड टू स्टोर वाटर एंड अदर आइटम. इसको वो फैट स्टोर करता है. जो ये हम्प होता है ना, इसमें वाटर स्टोर नहीं होता. इसमें क्या स्टोर होता है, फैट. कैमल के पास पानी स्टोर करने के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं है. इट यूजेस वाटर वेरी एफिशिएंटली. ये स्टोर अलग से कहीं नहीं करता, बॉडी में रहता है लेकिन खर्चता बहुत सोच समझ के पानी को. नेक्स्ट, आई एम अ मैमल एंड इट टेक्स मी फॉर 2 weeks to a month to digest my food. Who am I? Here we are talking about sloth. Sloth बहुत लेजी होता है और इसका जो खाना है वो कई हफ्ते लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में. और ये एक जिस पोजीशन में है ये बहुत देर तक वैसे ही रहता है because it's the laziest one. My fingerprints are similar to that of human being. It's koala. Koala के जो fingerprints होते हैं वो कुछ human beings जैसे होते हैं. I am a tiny animal and have more bones than there are in human body. Who am I? Mouse. Mouse के body में बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं लेकिन जितनी टोटल हमारी हड्डियां हैं 206, उनसे ज्यादा बोन माउस के अंदर होती है. I have a very long neck and I need just 1 hour of sleep in a day. It is giraffe. Giraffe को मुश्किल से 1 घंटे की नींद वो लेता है. ठीक है, उसको सिर्फ 1 hour की स्लीप चाहिए होती है और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है. I am a big animal with a horn on my nose. It is rhino. Rhinos are famous for the horn on their nose. I'm a bird and can rotate my head or neck by 270 degree. I am owl. जो owl होता है, here OWN is written, actually it's owl. OWL. जो owl होता है वो अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है. I'm a bird whose eyes are bigger than its brain. It's ostrich. Ostrich की जो आंखें होती हैं उसके ब्रेन से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं.
ब्रेन जो ब्रेन से क्या होती है, आईज बड़ी होती है। Soils in India. Here we are talking about the different type of soils found in India. This soil is highly fertile and is found from Punjab to West Bengal and Assam. ये जो मिट्टी है ये पंजाब से लेके असम तक पाई जाती है, ठीक है, और साउथ सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों में ये पाई जाती है। और ये जो सॉइल है ये कैसे बनी है? इट इज ब्रॉट बाय मेनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने अंदर क्या लेकर आती हैं? छोटे छोटे पीसेस, जिससे क्या बनती है? एलुविल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल covers almost 40% of total land area of India. हमारे देश में जितना भी लैंड एरिया है उसके 40% में क्या है? एलुविल सॉइल। सी सॉइल जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। वो बनती कैसे है? उसमें ऑर्गेनिक मैटर, रॉक के टुकड़े, ये सब होता है। तो वो बनती कैसे है? जब रॉक्स बनती हैं, चट्टाने बनती हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से हमारी चट्टाने बनती हैं ड्यू टू वेदरिंग। बारिश, हवा, पानी कुछ लगने की वजह से धीरे 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 इन रॉक्स में से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के आ जाते हैं और उससे क्या बनती है? हमारी सॉइल बनती है। Next, this soil is made up of volcanic rocks and lava particles. It also commonly referred to as cotton soil, as this soil is best suited for cotton farming. It is capable of holding a lot of moisture. This soil is referred as regur, which means regura. It is mostly found in the interior of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, on the Deccan Lava and Malwa Plateau. These regions experience moderate rainfall and have underlying basaltic rock. The soil we are talking about is black soil, जिसको cotton soil भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो soil है उसको moisture को hold करने की बहुत अच्छी tendency होती है। और ये जो सॉइल है इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए ये बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज formed due to weathering of metamorphic and igneous rocks. The color of the soil is due to the iron content. It has rich potash content, while the texture varies from sandy to clayey or mainly loamy. The soil lacks phosphate, nitrogen, and humus. It is found in regions like Tamil Nadu, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, and some part of Maharashtra and Karnataka. यहाँ पर हमारी पाई जाती है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। और ये जो सॉइल है ये बनती है मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के टूटने से। Now, the soil is mostly found in mountain region. The soil is a result of accumulation of organic matter from forest growth. The soil is generally shallow in depth and immature. While it is rich in humus, it lacks in time, potash, phosphorus content. The soil has a sandy texture with gravel. This soil is mostly found in the Himalaya region, Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Peninsular India, and Eastern Ghat. Here we are talking about the mountain soil, जो कि ज़्यादा कैसी होती है? उसमें क्या होता है? पोटाश, फॉस्फोरस, ये जितने मिनरल्स हैं ये नहीं होते, ठीक है। और ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? HUMUS। ह्यूमस का मतलब होता है जब प्लांट और एनिमल को जो मर जाते हैं, प्लांट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं,
and they convert into humus. This soil type is mainly sandy as it contains 90 to 95% sand. It is found in region where there is scanty rainfall. Scanty का मतलब होता है बहुत कम. The soil is low in nitrogen content and organic matter, but is loaded with calcium carbonate and phosphate, thereby rendering it almost ill-fertile. But the fertilizer and proper irrigation, crops such as barley, cotton, wheat, millet, pulses and maize can be grown in this soil, that is desert soil. जो desert soil होती है वो sandy होती है, that means रेतीली होती है, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, रेत होती है, ठीक है. और उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, ठीक है, जो कि उसको क्या बनाता है, इनफर्टाइल. इनफर्टाइल का मतलब जो कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे अगर हम फसल उगाएंगे तो शायद हमारी बहुत अच्छी फसल नहीं होगी. In the next page, here are some questions. In which country was the pigeon race introduced as a sport? बेल्जियम. बेल्जियम में जो पिजन रेस होती है वो एक स्पोर्ट है, ठीक है, इसको गेम डिक्लेयर कर दिया. द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड, सबसे छोटी बर्ड, बी हमिंग बर्ड. व्हाट इज द फाउंड ऑन द बीक ऑफ अ टर्की? टर्की जो है वो सिर्फ जगह का नाम नहीं, एक एनिमल का नाम भी है. तो एनिमल जो ये ऐसा एनिमल जिसके नेक पर क्या बना होता है, क्या होता है उसके नेक पर, स्नूड होता है. स्नूड का मतलब होता है आगे जो मुंह निकला हुआ होता है ना किसी का, थोड़ा सा प्लम, दैट इज नोन एज स्नूड. इन विच कंट्री आर पैरट्स नॉट फाउंड इन द वाइल्ड? इट्स आयरलैंड. आयरलैंड में जंगलों में पैरट्स नहीं पाए जाते. The figure of which bird on Mexico's national flag? That is eagle. जो मैक्सिको का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कौन सी पिक्चर है, ईगल की. Which bird is considered a symbol of peace? It is dove. जो डव होते हैं अगर उनको देखो तो वो आपको थोड़े बर्ड की पिजन्स की तरह दिखाई देंगे, तो उनमें क्या होता है, दे आर द सिंबल ऑफ पीस, वो शांति का प्रतीक होते हैं. Which bird live in a group of 7 and is very noisy? That is jungle babbler, जो कि ग्रुप में रहता है और बहुत noisy होता है, बहुत शोर करता है. Which of these is not a bird? Goose, bat and turkey. Bat, obviously, bat is not a bird, it's a mammal. Which bird cannot fly? Emu, because it is flightless bird. ये उड़ नहीं सकता. The retina of the nocturnal bird mostly contain rods. जो nocturnal birds होते हैं उनका जो retina होता है वो automatically बहुत strong होता है, क्योंकि ये रात को बाहर शिकार पे निकलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इनके जो रेटिना होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इफ यू लुक केयरफुली, अरुण का मतलब सूर्य होता है वैसे हिंदी में, आपको पता ही होगा, इसका पर्यायवाची है. तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है और वो भी कौन सी वैली में, डोंग वैली में. तो ये पोलो है, जो पोलो का गेम है, वो पोलो का गेम है जो कि ओरिजिनली कहाँ से, वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, इन मणिपुर.
कि एक रेयर प्लांट है श्रू लिली, जो कि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन एक तरह का पत्थर होता है, उसकी जो गुफा है वो सब कहाँ पर है? इट्स इन मेघालय। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि वो मिजोरम से पास होती है। नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, यानी कि सन 2011 सेंसस सेंसस होती है पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो तब से यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होती हुई कंसीडर की। रंगवा विलेज एक ऐसा विलेज है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा हुआ है, और इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 75,000 हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जहाँ नेचुरली प्रोड्यूस किया जा रहा है, कल्टीवेशन जो हो रहा है, एंड दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एनी केमिकल्स टू प्रोड्यूस these crops. So here were some facts.